Hello students, good morning all of you. Today I am here for the activity 3 of the chapter A Trip to Bhopal, covering the following competencies: understanding of basic concepts and problem solving ability. At the end of today's activity, you will learn to calculate sums mentally, to solve word problems, to relate story with your daily life. Now find out the answer of the following questions. What is your age? आपकी एज क्या है? What is your father's age? आपके पापा की क्या एज है? What is the age of your grandfather? आपके दादाजी की क्या एज है? What is the age of your grandfather's father? आपके जो दादाजी के पापा होंगे उनकी क्या एज होगी? You can take help from your parents क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा ना. Now can you imagine how much 100 years is? क्या अब आप इमेजिन कर पा रहे हो 100 years कितना लंबा टाइम होता है? What about 1000 years? It must be a long time. और 1000 years मतलब बहुत लंबा समय. When 10 such 100 years will meet, they will make 1000 years. Okay, for example, आपके जो दादाजी हैं ना, उनके भी दादाजी, ऐसे 10 दादाजी, दादाजी के भी दादाजी. जब उनकी एज को हम काउंट करेंगे and when we will reach 10th great grandfather, then the total years will be almost 1000 years. And when 100 such 100 years will meet, they will make 10,000 years. जब ऐसे ही 100 ग्रेट ग्रैंडफादर्स की एज को हम काउंट करेंगे और जब हम 100 सव्वे दादाजी पर पहुंचेंगे, then the total years will be almost equal to 10,000 years. और 10,000 कैसे लिखते हैं? 1 के पीछे 4 zeros ऐड करके. Now before moving ahead, can you recall where we have reached in the story? हम स्टोरी में कहाँ तक पहुँचे हैं? Yes, very good. The story started with when 210 students with their teachers left for Bhopal trip at 9 o'clock. 9 बजे चले थे, है ना? And Bhopal was about 70 kilometers away from their school. 70 kilometers का डिस्टेंस है भोपाल का उनके स्कूल से, और वहाँ पहुँचने में उन्हें कितना टाइम लगने वाला था? 2 hours. But on the way at the petrol pump, they stopped for 30 minutes, which means they are already late by half an hour. आधा घंटा लेट हो चुके हैं वो already. And all the students and teachers were planning to stop at Bhimbetka also. What is Bhimbetka? Bhimbetka is a place, एक जगह का नाम है, which has lots of caves and cave paintings. और भिम्बेटका किस लिए फेमस है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी केव्स, गुफाएं हैं, और उन गुफाओं में बहुत सुंदर पेंटिंग्स की हुई है उस टाइम पर. किस टाइम पर? 10,000 years ago. मतलब बहुत बहुत समय पहले लोगों ने उस केव में बहुत सुंदर पेंटिंग की है. And do you know Bhimbetka is famous for the painting which is done using dyes and colors. कलर्स का यूज़ करके लोगों ने उस टाइम पर इतने समय पहले पेंटिंग बनाई है. ओके, नाउ the children are really excited to see the cave paintings. It is about 11 o'clock. अब ध्यान से सुनना बेटा.
भिमबेटका किस टाइम पहुंचे वो? 11 o'clock, 11 बजे पहुंचे, है ना? नाउ लुक एट द पिक्चर, दीज आर भिमबेटका केव्स। ये भिमबेटका की केव्स हैं। कैन यू सी द पिक्चर्स ड्रॉन ऑन द केव? रेड कलर यूज है ना? देखो रेड कलर यूज करके कितनी सुंदर पिक्चर्स बनाई हुई हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। अपार्ट फ्रॉम भिमबेटका देयर आर many more famous caves in India. For example, Ajanta and Ellora caves in Maharashtra. There are beautiful paintings in such caves. और अजंता केव तो बुद्धिस्ट केव है। लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से पेंटिंग बनाई है रॉक्स पर, पत्थरों पर। देखो पत्थरों पर उनको उस टाइम पर इतने समय पहले कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। Now, coming to your textbook, see the children are enjoying looking at these caves. इन caves को देखते हुए बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। एक बच्चा क्या कह रहा है? देखो इस पर बाइसन्स मतलब जंगली बैल, वाइल्ड ऑक्स बने हुए हैं, डियर हिरन बना हुआ है, और लोग भी बनाए हुए हैं पिक्चर्स में। आपको भी दिखाई दे रहा है ना? Now the children have started counting them. बच्चों ने अब उनको काउंट करना शुरू कर दिया है कि चलो देखते हैं कि इस वाले पत्थर पर कितनी पिक्चर्स ड्रॉ हुई हैं। बॉय ने देखो बाइसन्स काउंट करना स्टार्ट किया, जंगली बैलों को काउंट करना स्टार्ट किया, और कितने हैं? 37 बाइसन्स। नाउ द गर्ल काउंटेड द डियर्स। कितने डियर्स काउंट किए गर्ल ने? 117। सो विच इज मोर, बाइसन्स और डियर? डियर है ना, डियर ज्यादा है ना। अब एक और लड़की है जो लोगों को काउंट कर रही है, पीपल की पिक्चर्स की, कितने लोग हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। पता है क्यों? क्योंकि उसने जब लोगों को काउंट किया तो उनका नंबर डियर और बाइसन्स को ऐड करके मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन्स टुगेदर, अगर जितने डियर हैं और जितने बाइसन्स हैं उनको अगर ऐड कर दें दोनों का नंबर, तो जो नंबर आएगा उससे भी ज़्यादा था। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन्स? कितने डियर ज़्यादा हैं बाइसन से? माइनस करके पता चल जाएगा। 117 माइनस 37 इक्वल्स टू 80। 80 डियर ज़्यादा हैं। हाउ मेनी पीपल बोनोमाला हैव काउंटेड? बोनोमाला ने कितने पीपल काउंट किए होंगे? देखो उसने बताया ना कि उसने जो पीपल काउंट किए हैं वो डियर और बाइसन से ज़्यादा हैं, लेकिन 200 से कम है। तो 117 प्लस 37 करो, डियर और बाइसन को प्लस करो, 154। देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल बोनोमाला हैव काउंटेड, क्योंकि 154 से तो ज़्यादा होंगे ना और 200 से कम, तो उन ये जो चार ऑप्शन दिए हैं 214, 154, 134, 177, पहले आप देखो कि 154 से ज़्यादा कौन सा नंबर है? दो नंबर है, 214 एंड 177। बाकी तो दोनों 134 छोटा है और 154 तो बिल्कुल इक्वल हो रहा है। बट शी सेड कि मैंने जो पीपल काउंट किए हैं वो आप दोनों का जब नंबर डियर और बाइसन का नंबर ऐड कर देंगे उससे ज़्यादा है, तो 154 तो हो ही नहीं सकता। तो बचे टू नंबर्स 177 एंड 214। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा? 177, because she said my number of people are less than 200. Okay, now fifth question, they have spent 1 hour there. What time is it? अब उन्होंने भिमबेटका में 1 घंटा स्पेंड किया, तो अभी कितना टाइम हो रहा होगा? अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, जब मैंने कहा था ध्यान से सुनिए कि भिमबेटका वो कितने बजे पहुंचे थे? 11 o'clock, 11 बजे पहुंचे थे। तो 1 घंटा उन्होंने वहां पर बिताया। इट मीन्स 11 o'clock प्लस 1 आवर। 11 o'clock में 1 आवर ऐड करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा? 12 o'clock, 12 बज गए।
Understood? Now you have to do these questions in your notebook also. If you find any problem in understanding them, then you can ask me. Okay? Now moving ahead. Coming to your textbook, read the next page and try to understand it. Okay? So what is written there? Now the students and children have left for Bhopal. Okay? Their teacher is distributing some oranges, biscuits and bananas to all the students. Okay, each child is to be given one orange, one banana and 5 biscuits. हर बच्चे को एक ऑरेंज दिया जा रहा है, एक बनाना केला दिया जा रहा है और हर एक बच्चे को 5 बिस्किट्स दिए जा रहे हैं. You have to find out how many oranges, biscuits and bananas are distributed. Now can you tell? क्या आप बता सकते हो कि टोटल कितने ऑरेंजेस, बिस्किट्स और बनानास बांटे गए होंगे? इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि टोटल कितने बच्चे हैं. कितने बच्चे हैं टोटल? 210. और एक और पॉइंट लिखा है कि 38 बच्चों ने बनाना नहीं लिया, बाकी सभी ने सब कुछ लिया. तो अब आपको इसका आंसर पता करना है. ट्राई टू फाइंड इट योरसेल्फ. अपने आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करो. क्वेश्चन समझ आ गया ना? हर बच्चे को एक ऑरेंज मिला है, एक बनाना मिला है और 5 बिस्किट्स मिले हैं. लेकिन ये भी ध्यान रखना कि 38 बच्चों ने बनानास नहीं लिए हैं. नाउ some of the students were passing time by asking puzzles. अब कुछ बच्चे आपस में ही कुछ क्वेश्चंस पूछकर टाइम पास कर रहे थे. मंजीत ने पूछा, टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150. क्या आप बता सकते हो 100 और 150 के एग्जैक्टली बिटवीन, बीच में कौन सा नंबर आएगा? Yes, very good. It is 125. तो आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर निकाला? You can check it from here. कैसे निकालोगे? सबसे पहले कितने ऑरेंजेस मिले वो काउंट करें. टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, देयर आर 210 चिल्ड्रन. तो एक ऑरेंज सबको मिला तो 210 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू सबको कितने ऑरेंजेस मिले होंगे? 210. सॉरी, टोटल कितने ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे? 210. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स. एक बच्चे को कितने बिस्किट मिले? 5. तो 210 बच्चों को कितने बिस्किट मिलेंगे? 210 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 1050 बिस्किट्स. हाउ विल यू राइट 1050? 1050. 150 मत लिखना, इट विल बी 150. Okay, now coming to C, total number of bananas distributed. bananas कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे टोटल? उसके लिए पहले आपको 210 में से 38 माइनस करना होगा. क्यों? क्योंकि 38 बच्चों ने तो बनाना लिया ही नहीं. तो 210 में से 38 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 172. और एक बच्चे को एक ही बनाना मिला है ना, तो इसका मतलब 172 बच्चों को कितने बनानास मिले होंगे टोटल? 172 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 172 bananas distributed to all the children. Now you have to do these questions in your notebook. बच्चे आपस में पजल्स शेयर कर रहे हैं. तो एक बच्चे ने क्या पूछा? आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स. मैंने 4 टॉफ़ी दी अपने हर एक दोस्त को. और कितने दोस्त हैं उसके? 4 दोस्त हैं. 4 फ्रेंड्स आर देयर.
एक को वन फ्रेंड को 4 दी, दूसरे फ्रेंड को भी 4 दिया, तीसरे फ्रेंड को भी 4 टॉफीज दी, ऐसे ही फोर्थ फ्रेंड को भी 4 टॉफीज दी। और उसके बाद मेरे पास 3 टॉफीज बच गई, तो मेरे पास कितनी टोटल टॉफीज होंगी? इट इज़ वेरी इजी, यू कैन फाइंड इट ना। सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि टोटल कितनी टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। 4 फ्रेंड्स हैं, 4 टॉफीज हर एक को दी, एक को 4 टॉफीज दी, तो 4 फ्रेंड्स को कितनी मिली होंगी टोटल? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू 16। और 3 टॉफीज उसके पास बच गई, तो 16 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 19 टॉफीज होंगी टोटल। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट नंबर कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7? इन 3 नंबर्स को यूज करना है आपको, 3, 5 और 7, और इससे डिफरेंट डिफरेंट नंबर बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7 357, 5, 3, 7 537। इसी तरह से और कौन से नंबर बना सकते हो आप? 3, 7, 5 375, 5, 7, 3 573, 735, 753, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको डबल करने पर 16 बनेगा? ठीक है, उसका ट्वाइस हो जाएगा। बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जिसको डबल करे तो 16 बन जाएगा? थिंक थिंक, इट इज 8। 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बच्चा? थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 50। आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 के टेबल में भी आता हो, 3 के टेबल में भी आता हो और 5 के टेबल में भी आता हो, और वो नंबर ऐसा है जो 25 और 50 के बीच में आता है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 2, 3 और 5 तीनों के टेबल में आता है और 25 और 50 के बीच में है वो नंबर? कैन यू फाइंड इट आउट? यू कैन यूज दिस सिंपल मेथड। मल्टीप्लाई करो तीनों नंबर्स को, 2, 3 और 5 को। हाउ मच यू विल गेट? 2 3s आर 6, 6 5s आर 30। तो 30 वो नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है, और इन दोनों 25 और 50 के बीच में भी है ना नंबर। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30 है ना, और 50 से पहले है। एक स्मॉल एंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल एंट क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर। एक छोटी सी चींटी है, 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ती तो है, लेकिन 2 सेंटीमीटर फिसल के नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब कितना चली वो 1 मिनट में? 1 सेंटीमीटर। 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर? तो 2 सेंटीमीटर चढ़ने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? अभी मैंने बताया ना, 1 सेंटीमीटर में, ओ सॉरी 1 मिनट में वो 1 सेंटीमीटर चढ़ी, तो 2 सेंटीमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट्स। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नाउ डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ओके।